Hello everyone. Today we'll be covering the case study of chapter number 1, that is nature, objective and scope of the audit. So let's start reading. Rohit, Gurpreet, Ali and Guriti are friends since their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation exams in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exams. All of them are avid news listeners and regularly keep a track of business news even on social media. They are trying to understand new subjects like auditing. Rohit, Gurpreet, and Ali have also started attending live coaching classes being conducted by Board of Studies ICAI. Goriti has not been able to join the live classes as she was on holiday. However, she plans to catch it up with her friends very soon. Ali had also joined the classes but he had skipped some lectures. During one informal get together, their discussions centered around new subject of auditing. They discussed many things regarding the nature, scope, benefit and other general practices. Goriti was regular in keeping track of audited results of the companies being published in the newspapers. Her view was that audited financial statements of companies give 100% guarantee to the different stakeholders. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि 100% गारंटी मिलती है? नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर कि हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है और ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस. सो 100% गारंटी नहीं दी जा सकती. It is the main reason behind so much reliance upon auditing, but she could not understand why the wrongdoings are being discovered after many years have gone by. Ali also concurred with the view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in the books of accounts are verified. Gurpreet was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. He was also of the view that audited statements are not a guarantee. इसने ये वाली बात ठीक बोली है क्योंकि ऑडिट में क्या होता है, हम हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, तो हमेशा एब्सोल्यूट अश्योरेंस मिलना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. Not to left behind, Rohit also jumped and he supported Gurpreet. So now let's answer the questions based on the above. The first question. Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters. What kind of assurance does audit of financial statements provide? अब आपको बताना है कि जब भी हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो कैसा अश्योरेंस मिलता है. ये तो पता ही है कि रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है. उन्होंने चारों पॉइंट्स में आपको रीजनेबल अश्योरेंस ही लिखा है, बट हमें इसमें ये चेकआउट करना है कि रीजनेबल अश्योरेंस किस लेवल का अश्योरेंस होता है, हाई लेवल, लो लेवल, मॉडरेट लेवल और एन एब्सोल्यूट लेवल. तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर, तो दिस प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस इज द आंसर. क्योंकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो पूरी 100% अश्योरेंस होती है, लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस होती है अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. तो हाई लेवल वाला आंसर इज करेक्ट. Now let's read the second question. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide the required information and documents. Can he do so? तो इसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है. ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑडिटर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है ना, फोर्स नहीं कर सकता कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने ही है, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट करने गया है वहाँ पे, वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया, राइट. अब जैसे इन्होंने बोला तो हमारा इसमें आंसर क्या होना चाहिए, येस वाले तो पॉसिबल ही नहीं है. हम इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे कि व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर. ही कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो सी वाला पॉइंट रीड करते हैं. ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड. ये अभी तक सही है. लेट्स रीड द डी पार्ट. No, he cannot do so. He does not has any right of seeking information. ये पूरा का पूरा गलत हो जाता है यहीं के यहीं, क्योंकि ऐसा इन्होंने लिख दिया कि इनके पास कोई राइट ही नहीं है इन्फॉर्मेशन सीख करने की, जो कि गलत है. राइट तो है ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन सीख करने की. इट्स ऑल अबाउट कि हमें रिक्वेस्ट करनी होती है एंड वी कैन नॉट फोर्स. तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इट कैन नॉट बी फोर्स्ड. थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction of the entity is verified by the auditor. Goriti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it is also meant that audit should be so organized to cover all the areas
ऑफ एन एंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। आपको बताना है इनमें से किसने सही बोला या किसने गलत बोला या दोनों ने ही गलत या सही बोला। तो अली हैड लिसन्ड इन वन ऑफ द क्लासेस। अली कहता है कि ऑडिट सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी कवर करता है एंड कंक्लूडेड दैट हर एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया जाता है बाय द ऑडिटर। ये क्या सही चीज़ है? ये पूरी गलत चीज़ है, क्योंकि कभी भी ऑल द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर इसीलिए तो सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करता है, इसीलिए तो सैम्पलिंग का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, क्योंकि कभी भी हम सारे ट्रांजैक्शंस को नहीं चेक ऑन कर सकते एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अली भी गलत हो जाता है। और गोरिती बोलती है इट सीम टू बी एन अग्रीमेंट विद हिम, कि पहली बात गोरिती उसके साथ अग्री कर रही थी इस बात को लेके, बट शी वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट इट इज़ मेंट दैट ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एन एंटिटी। तो नहीं, ये भी दोनों की दोनों लोगों की बात गलत है। तो इसमें आपका आंसर होगा व्यूज ऑफ अली एंड गोरिती बोथ आर इनकरेक्ट बिकॉज ऑल्सो शी वॉज इन अग्रीमेंट विद योर अली, व्हाट अली वॉज सेइंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. So fourth question speaks about all of them also discussed about the benefits of auditing. Which of the following is not likely a benefit? हमें इसमें बताना है कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ से लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं. इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसीज इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड. बिल्कुल ये बेनिफिट है, क्योंकि हम ऑडिट करते हैं, हमें गलतियों का, मिस स्टेटमेंट्स का, डेफिशिएंसीज का पता चलता है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कैन मेक यूज़ ऑफ ऑडिटेड स्टेटमेंट्स. बिल्कुल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आपके ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को यूज़ करती है टैक्स लायबिलिटीज़ डिटरमाइन करने के लिए. तो येस, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट. एरर और फ्रॉड डिस्कवर किए जाते हैं. बिल्कुल एरर और फ्रॉड हम डिस्कवर करते हैं, मिस स्टेटमेंट्स डिस्कवर करते हैं. तो हमारा जो ए ऑप्शन बचा, डैट इज सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू द फ्यूचर इवेंट्स, नॉट एट ऑल. ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी नो. कभी भी हम ये फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे नहीं करते हैं, हमेशा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिट किया जाता है. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में भी पढ़ा था कि हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के डेटा को ऑडिट किया जाता है, फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे नहीं होता है. सो दिस इज नॉट अ बेनिफिट हियर. द लास्ट क्वेश्चन इज, Gority told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditors by producing some fabricated statements. By producing some fabricated documents, which of the following statements seem to be appropriate in this regard? तो इसमें हमें चेकआउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ये बोलते हैं कि गोरिती ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि किस तरीके से कंपनी जो है वो ऑडिटर्स को भी मिसलीड कर देती है, कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा के, कि ऑडिटर को विश्वास करना ही पड़े ना चाहते हुए भी कि हाँ ये ठीक ही होगा. तो लेट्स रीड आउट. इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स. उसको डिस्कवर करना चाहिए था एज द सेम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ. ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने साफ साफ स्कोप में पढ़ा है कि ये उसके स्कोप के बाहर है. ऑडिटर के स्कोप में ये चीज़ नहीं है कि वो ये चेक करे कि डॉक्यूमेंट्स फेक है या नहीं है. दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर. ऑलराइट, तो ये ऐसा कुछ भी आंसर नहीं हो सकता. दूसरा पढ़ते हैं. ऑल्दो इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स. वो कुछ कर नहीं सकता इस मैटर में. ही हैड टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू हिम. ही हैज़ नो ड्यूटी इन दिस रिगार्ड. ये बात उन्होंने कुछ सही बोली कि हाँ इसकी यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं. इट इज़ करेक्ट अप टिल नाउ. लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. Auditor has to conduct audit by exercising the professional skill. Okay, बिल्कुल correct है. He is not an expert. Very good. He is not an expert in discovering the genuineness of the documents. वो expert नहीं है ना कि वो उसकी genuineness भी check करे, fake है नहीं है, fabricated है कि नहीं है. Hence management consisting of dishonest persons may have led him. Exactly, क्योंकि वहाँ के जो dishonest persons होंगे उनकी वजह से उसको rely करना पड़ा होगा उन फैब्रिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डेलिबरेटली. ये भी ठीक है. मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज. ऐसा कुछ भी आंसर नहीं हो सकता. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला, जिसमें इन्होंने बहुत ही एप्रोप्रिएट बात लिखी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं. वेरी एप्रोप्रिएट थिंग दे हैव written here, that auditor has to conduct audit by exercising the professional skill. He is not वो expert थोड़ी ना है कि वो genuineness of the documents को भी देखेगा. मैनेजमेंट में जो भी dishonest persons हैं उन्होंने ऐसा statements को fabricate करा कि उसकी वजह से ऑडिटर को रिलाई करना पड़ा उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और उसने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक ऑन करा, एग्जामिन करा. तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस स्टडी.
Stay updated for more.